Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Zahirul Hasan from Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हमारा टॉपिक है पोएम that is The Road Not Taken. इस पोएम को आज हम इस तरह से डिस्कस करेंगे एज पर द न्यू SLOs फेडरल बोर्ड की न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज आई है, उसके मुताबिक किस तरह से आपको क्वेश्चन पोएम से पूछे जाएंगे. स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी देयर. हाउ यू आर गोइंग टू आंसर देम. आज जो सिलेक्शन की है मैंने, जो स्टेंजाज सिलेक्ट की हैं, दे आर द फर्स्ट टू स्टेंजाज एंड स्लाइटली वी विल गिव अ टच टू द थर्ड स्टेंजा एज वेल. उन स्टेंजाज को हम रीड करेंगे. टेक्स्ट रीडिंग के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर डिस्कस देयर, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं और उसको कैसे आंसर करना है. So first of all, let's take a start. The Road Not Taken is a beautiful poem. It is written by Robert Frost. Robert Frost is not something new for you. You might have read the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. आपने क्लास 9 में ये पोएम पढ़ी हुई है. It's a beautiful description of nature. कितने प्यारे अंदाज में नेचर को डिस्क्राइब किया. No doubt he is also a poet of nature. He is famous American poet of 20th century. Let's take a start from stanza 1. पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा, there would be two stanzas and at the end of stanzas there would be questions. अभी हम thoroughly stanza को रीड करेंगे. Stanza का एक है आपका apparent meaning, a literal meaning, and the second one is your metaphorical meaning, that is deeper meaning, what the poet wants to communicate by using literal meaning. How does he want to convey the idea? So first of all, we take a start. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. जैसे कि टाइटल आपको सजेस्ट करता है, The Road Not Taken, कि उस सड़क पे वो ऐसी सड़क जिसको फॉलो ना किया गया, जिस पे चला ना किया, जिसको अडॉप्ट ना किया गया. Situation is like this, that the poet is standing at a divergent point at the cross sections of a wood. वो एक जंगल में खड़ा है, क्रॉस सेक्शन पे है. There are two roads और वहां पे ये दो सड़कें हैं. They are going into the forest. Poet is at a stage where he is unable to decide which way to be adopted. Two roads diverged in yellow wood. Diverged, separated ways, split ways. Yellow wood means these are autumn effects. Yellow, the leaves turn yellow in the season of autumn. So it means that the season of autumn is prevailing and the poet is there in the woods. There are yellow leaves and the poet is standing at the cross section of woods. And sorry, I could not travel both. The poet regrets, वो अफसोस करता है इस बात पर कि both ways, दोनों रास्ते जो हैं वो उसके लिए अट्रैक्टिव हैं, अपीलिंग हैं, enchanting हैं. Again I would go to Stopping by Woods on a Snowy Evening, when the poet said that the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. कि woods जो है lovely भी है, dark भी है और deep भी है. तो यहां पे आप देखें कि पोएट इज देयर, ही इज स्टैंडिंग इन द वुड्स एंड इज अनेबल टू डिसाइड विच वे टू बी अडॉप्टेड, कि किस रास्ते पे चला जाए. और पोएट इस चीज पे अफसोस करता है कि दोनों रास्ते उसके लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं और अपीलिंग है, लेकिन वो दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, वो ये कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूं. I have only a choice. I have to go on one path. एक रास्ते पे मैंने जाना है. और he has to select one and look down one as far as I could. जितने दूर तक वो देख सकता था, he just cast a look. उसे एक नजर डाली. In deep into the forest to where it bent. Bent means that there was a turning at the end. In the undergrowth there was the dense growth of trees. एक रास्ता जिसको था हद्दे निगाह, टिल द लास्ट कॉर्नर, वहां तक पोइट ने देखा. एंड पे एक टर्निंग थी, एक मोड़ था और आगे डेंस ग्रोथ थी.
बड़ी थिक ग्रोथ थी वहां पे ट्रीज की, तो वहां वो रास्ता इस तरह से उसे नजर आया कि वहां पे उसकी एंडिंग थी जहां पे एक बेंड था, अगेन देयर वाज डिवीजन, उसका अगेन उसकी फर्दर डिवीजन हुई थी। तो पोइट ने वहां तक उसे देखा। अब ये एक फर्स्ट स्टैंजा था, ये सब इसका एक अपरेंट मीनिंग है, इट्स लिटरल मीनिंग दैट द पोइट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर देयर आर टू पाथ्स, और उन दो रास्तों में से पोइट ने एक सिलेक्ट करना है, एक को चूज करना है, लेकिन द थिंग इज ही इज अनएबल टू डिसाइड येट। पहले रास्ते को डिस्क्राइब किया और साथ ही फॉरेस्ट को भी डिस्क्राइब किया गया कि फॉरेस्ट कैसा है, और पूरी सेटिंग उसमें डिस्कस की गई। उसमें देयर हैज बीन डिस्कस द सीन ऑफ द फॉरेस्ट, कि व्हाट आर अपेरेंट सिम्टम्स ऑफ ऑटम सीजन के क्या सिम्टम्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा जब आपको पेपर में आएगा तो पेपर सेटर जो न्यू पैटर्न है आप फेडरल बोर्ड का, उसमें पेपर सेटर ने आपसे जो क्वेश्चन करने हैं दे माइट बी अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच, द लिटरेरी डिवाइसेस, और ये चीजें जो हैं दे आर देयर ऑन द फर्स्ट बोर्ड एंड द सेकंड बोर्ड एज पर स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2। एज इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है दैट इज as it is obvious that there is first question number 1 on the first board is that what is the rhyme scheme of the stanza. So rhyme scheme, if we see cast a look at the board, rhyme scheme of the stanza, what is the impact of rhyme scheme? Rhyme scheme जो होते हैं they are ending words, ये last के words होते हैं। If you see the first line it ends with the word would, second line ends with the word both, third line ends with the word stood, fourth line ends with the word could, and fifth with undergrowth. अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये would, stood, could, ये तीन ऐसे अल्फाज हैं फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में। सिमिलर साउंड, डस साउंड, सिमिलर साउंड्स जो हैं इसमें आ रही हैं। सो इसमें सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन बोथ अंडरग्रोथ, इसमें थर्ड साउंड है। तो इस तरह से आप देखें तो उसकी राइम स्कीम इस बनेगी, राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा वुड बी ए बी ए ए बी। क्यों? क्योंकि वुड के लिए हमने ए वर्ड रखा, ए लेटर लिखा, स्टूड के लिए भी ए एंड कुड बिकॉज द साउंड्स आर सेम, एंड बोथ थर्ड साउंड एंड ग्रोथ थर्ड साउंड, इसके लिए हमने ब साउंड एंड ब साउंड, राइट। सो इसके लिए हमने बी और बी हमने रखा, तो इसकी राइम स्कीम दैट वुड बी ए बी ए ए बी। देयर इज अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ राइम स्कीम इन अ स्टेंजा, इट गिव्स अ टच ऑफ म्यूजिकलिटी टू द पोएम, एक म्यूजिकल इंपैक्ट देती है पोएम को, इट गिव्स द रिदम टू द रनिंग लाइन्स ऑफ द पोएट्री। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से फर्स्ट से क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबल इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंजा से हम देखते हैं, यू मे बी आस्क्ड टू राइट राइमिंग वर्ड्स, देयर आर टू वर्ड्स गिवन वुड एंड बोथ, यू हैव टू राइट टू राइमिंग वर्ड्स आउट ऑफ दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज वुड, द राइमिंग वर्ड्स अकॉर्डिंगली वुड बी स्टूड, हुड, देन there is a word both, rhyming word relevant, that would be growth and dearth. Then question number 3, if you see that it may be asked that give an example of visual imagery from the poem. First of all, you must know what is imagery, and it's not something new for you, it's quite common thing. You can see that whenever you are reading a text, a poem, a piece of literature, a story, when you are reading, at the same time there are some images formed in your mind. It's a strip, it appears as if the whole phenomena is occurring in front of you. अगर मैं एक आपको लाइन बोलूं, the stormy wind bent the trees down, what does it mean? कि तूफानी हवा ने दरख्तों को झुका दिया। अब जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, द स्टॉर्मी विंड बेंट द ट्रीज डाउन, तो वाइल रीडिंग दिस टेक्स्ट हमारे माइंड में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जाती है, हम पूरे सीन को विजुअलाइज करते हैं। सो इट इज कॉल्ड योर विजुअल इमेजरी। सो अगेन वी टर्न टू स्टेंजा 1।
when there would be a question, it would be asked, give an example of visual imagery or how imagery is used in this stanza. So इसमें आप जब आंसर करेंगे, there would be answer that would pertain to forest description and yellow woods. पहले पोइट ने आपको पूरा सीन एक्सप्लेन किया है, एक सेटिंग एक्सप्लेन की है, फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया है, दैट देयर आर टू वुड्स डाइवर्ज्ड. अब ये जो लाइंस हैं, टू वुड्स डाइवर्ज्ड, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये आपको बड़ी क्लियरली ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि 2 सड़कें हैं और उस एक क्रॉस सेक्शन पे पोइट खड़ा हुआ है और वहां से वुड्स में पोइट खड़ा है और 2 सड़कें जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं और वहां पे ऑटम सीजन इज प्रिवेलिंग व्हेन ही सेज दैट दे आर येलो वुड. तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे सामने पूरा पिक्चर आ जाती है, हम विजुअलाइज करते हैं, इसको प्रॉपर सी करते हैं, इसको देखते हैं अपने इमेजिनेशन में, एक इमेज फॉर्मेशन होती है. इट इज कॉल्ड योर विजुअल इमेजरी. सो इन दिस वे you will write the answer pertaining to visual imagery. Next question is anaphora. How does the poet use anaphora in this stanza? What is anaphora? Anaphora is actually, it is the use of consecutive sentences with the same words. Again, turn to stanza 1. Stanza 1 में आप देखें कि कुछ ऐसे words हैं. Second line में and sorry, and be, and look down. Second line में and sorry, थर्ड लाइन में एंड बी और फोर्थ लाइन में अगेन एंड वर्ड. ये एंड वर्ड की रेपिटेशन है. इट इज द रेपिटेशन, द सेम रेपिटेशन विच इज मेंशन्ड हियर. इट इज द यूज ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस विद द सेम वर्ड्स. एग्जांपल्स आर देयर, एंड बी, एंड सॉरी, एंड एक्सेट्रा. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? द पर्पस ऑफ एनाफोरा इज जस्ट टू हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन. सो इन दिस वे इस किस्म के क्वेश्चन आपके स्टैंजा 1 से पूछे जा सकते हैं. So it was all discussion on stanza number 1 and the expected questions. उसमें हम recap लेते हैं. एक आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, that may be asked about the rhyme scheme of the stanza. What is the rhyme scheme of the stanza? Give rhyming words out of the given words in the stanza. Then question number 2 may be asked, that would be about visual imagery, examples of imagery. Then question number 3, it may be asked about anaphora. Dear students, now it's time to move to the next board for discussion on stanza number 2. Okay, stanza number 2. Then took the other, as just as fair. अब पोएट अपनी सेकंड चॉइस की तरफ चलता है. फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट रोड को उसे इंस्पेक्ट किया. हाउ डिड इट लुक लाइक, कैसा ये लगता था उस पर जाना, उसकी कैसा इमेज फॉर्मेशन थी. अब सेकंड वो कहता है देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रोड को इंस्पेक्ट किया, एज जस्ट एज फेयर. नाउ हियर द पोएट यूजेस अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज असेंबली. मीन्स कि ये सड़क भी, ये रोड भी पहले रोड की तरह फेयर लगता था. Means both looked similar. Then, and having perhaps the better claim, and probably, or shayad, the better claim, maybe he chose better path. वो प्रायोरिटी दे रहा है कि शायद ये मेरे लिए एक बेहतर क्लेम होगा, इसको बेहतर होगा कि मैं इसे चूज कर लूं. Why? Because it was grassy. ये ग्रासी था. There was lush green grass. ये बहुत अट्रैक्टिव था, और भी अपीलिंग था. इसमें ग्रासी लैंड थी, ग्रास, ज्यादा ग्रास की ग्रोथ थी कंपैरेटिवली. एंड वांटेड वियर, और ये वियर मींस यूजेज. वियर इज समथिंग दैट मींस पुट ऑन. पुट ऑन मींस दैट इट इज क्वालिटी दैट रिलेट्स विद ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स वियर ऑन समथिंग, दे पुट ऑन, दे वियर, पहनते हैं वो. अब वांटेड वियर मींस कि ये ऐसा एक सड़क थी जिसपे यूजेज दरकार थी, जिसपे चला जाना चाहिए था. यानी इस पे इतनी ज्यादा अभी इसको यूज नहीं किया गया था, इस पे इतनी ज्यादा वॉक लोगों ने नहीं की थी, इस पे ज्यादा लोग चले नहीं थे. मीन्स इन अ वे ही इज डिलीवरिंग अ मैसेज कि ये जो सड़क थी ये लेस ट्रॉडन पाथ था. व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन?
फर्स्ट स्टैंजा ने हम डिस्कस किया, फर्स्ट जो रोड था दैट वाज फ्रीक्वेंटली ट्रॉडन। क्यों? उस पे घास जो थी वो कम थी, इट मीन्स कि वहां पे ज्यादा लोग चल चुके थे, एक रास्ता बना हुआ था, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पे घास ज्यादा थी। व्हाट डज इट मीन? कि इस पे लोग कम चले थे। इट वॉज लेस ट्रॉडन पाथ एंड द प्रीवियस वन वॉज फ्रीक्वेंटली ट्रॉडन पाथ। तो ये ग्रासी था, तो पोएट को इस रोड ने अट्रैक्ट किया, इस रोड ने अपील किया। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगरचे वहां से अगर वो गुजरे तो फिर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो वॉर्न मीन्स डैमेज्ड। तो अगर ज्यादा हम ग्रासी लैंड से गुजरेंगे, व्हाट वुड हैपन? द ग्रोइंग ग्रास वुड स्टॉप, वो रुक जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी और पहले की तरह ही वो हो जाएगा। तो यहां पे पोएट ने हमें अगेन, दिस स्टैंजा इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी। हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो ग्रास को डिपिक्ट कर रहा है और बता रहा है कि उस पर चला जाए तो उसका क्या पास्चर होगा। अंडरस्टैंड? और इसी तरह से इसमें पोएट ने जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए, यू कैन सी wanted where the as for that the, फोर्थ लाइन में आप ये देखें तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया पोएट ने। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस। अब जैसे देखें इसमें बोर्ड पे आप यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दिस स्टैंजा। यू कैन सी दैट एलिट्रेशन इज यूज्ड देयर, imagery is used there, personification. We can find personification here. I have just explained earlier, wanted where. It was grassy and wanted where. Wanted where is there discussed on both parallels. First is there that pertains to alliteration. It's were sound, wanted were, where were. Initial repetition of initial consonant sounds. जो हमारी consonant sounds है other than vowel sounds phonemes में, उस लिहाज से आप देखें तो इनिशियल में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, इनिशियल लेटर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब यहां पे वांटेड वियर इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। देन देयर इज इमेजरी, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। देन देयर इज पर्सोनिफिकेशन, दैट हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग। नाउ वी कैन सी अगेन एज इट इज डिस्कस्ड इन फर्स्ट स्टैंजा, literal meaning is there, apparent meaning is there. There is description of forest, there are 2 roads. Apparently the poet has told us about the 2 roads are there. Poet is standing in a forest, he is hamletized, he is in a state of to be or not to be, he is unable to decide which one to follow. और वहां पे ये एक apparent meaning है, दोनों का physical situation the poet has explained. Now we can see the roads are metaphors. These are metaphors the poet has used for choices. Which choice is going to be taken by the poet? So, it is a difference between literal meaning and metaphorical meaning. The purpose of it is just to convey the idea, the main context, the main theme which the poet wants to share with the readers. He wants to make them understand the importance of figures of speech and how they convey the main idea. Now, question may be asked from the message or theme of the stanza. What is the message of this stanza? What is the theme of this stanza? So, we can see that the theme of the stanza is newness and novelty, vistas of learning. अब इन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं. We can discuss this thing in the way कि अगर फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में कंपैरेटिव एनालिसिस करें, अगर एक कंपैरिजन किया जाए कि लेस ट्रॉडन पाथ एंड फ्रीक्वेंटली ट्रॉडन पाथ, व्हाट डज इट मीन? व्हाट चॉइस दैट सीम्स टू बी द पोएट इज फेवरिंग? किसको पोएट फेवर करता हुआ नजर आ रहा है? हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा कि पोएट उस रास्ते को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ ज्यादा जाता है जो रास्ता ग्रासी है, एंड दैट वांट्स वियर, और जो रास्ता वियर चाहता है, द वे दैट वांट्स यूजेज, ऐसा रास्ता जो ये डिमांड करता है कि उस पर चला जाए. आप इसी में डियर स्टूडेंट्स, आप अगर थर्ड स्टैंजा पे जाएं तो उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स अगर देखें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक,
Oh, I kept the first for another day. तो इसका मतलब है कि अगेन द थिंग इज क्वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि पोएट ने अडॉप्ट कर लिया है और वो करने जा रहा है सेकंड पाथ को, उस रास्ते को जो के वेयर देयर आर फ्रेश लीव्स, दे आर नॉट ब्लैक लीव्स, दे आर नॉट द लीव्स बीइंग क्रश्ड बाय द वॉकिंग ऑफ द पीपल, कि लोगों के चलने से वहां पे जो पत्ते गिरे हुए हैं ऑटम सीजन में वो ब्लैक नहीं हुए क्रश होने की वजह से, मीन्स frequently trodden path वो नहीं है, means the poet has decided to go on the less trodden path. So तो उसमें आप देखें कि poet actually हमें बताना क्या चाह रहा है, that poet is going to launch a revolt against traditionalism, against conventionalism. He is not the trend follower, he is a trend setter. वो एक ट्रेंड सेटर है. He is a rebel against the existing norms, against the existing norms of society. He is the one who is going to accept challenges just to reach his destination, just to attain his goals, just to reach the heights of success. So this is something that the poet, it's the message he wants to convey. फिर इसी तरह एक इसमें ये एक मैसेज अगेन फर्दर ये आ रहा है कि आपका न्यूनेस, नॉवेल्टी, दीज आर द थिंग्स. If a man goes against traditions, if a man goes against conventions, if a man goes against the set patterns, it means he is going to lead a path that is going to open new vistas of knowledge and learning on him. New horizons of knowledge are there for him. He is going for the best. He is the one who is going for novelty. He is going for newness. He is going for enlightenment. So ये वो मैसेज है जो पोएट कम्युनिकेट करना चाह रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज आवर डिस्कशन ऑन स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2. जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड का नया जो पैटर्न आया है फेडरल बोर्ड का, SLOs बेस्ड है, उसके मुताबिक हमने डिस्कस किया. क्वेश्चन वाइज किस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह सेंट्रल आइडिया है, थीम है, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. स्टेंजा मे और मे नॉट बी फ्रॉम योर कोर्स बुक्स, आपकी कोर्स बुक से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर एज फार एज द न्यू पेपर पैटर्न इज कंसर्न. आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the aspects of the discussion. Okay, thank you very much. Till the next class.